हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में हम सी एस सी 2021 के कुछ टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ एनालाइज करेंगे, जो कि उन्होंने हमारे साथ जो मेंस फोकस ग्रुप में हमारा प्रोग्राम होता है यूपीएससी प्रेप का, वहाँ पे लिखी थी। सो बोथ दीज कॉपीज़ आर ऑफ रैंकर्स इन 2021। दे वर पार्ट ऑफ द मेंस फोकस ग्रुप एंड समटाइम्स इफ़ यू फील कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ कॉपीज़ पे डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिला हुआ है, जो कि अब हम टेस्ट सीरीज़ में देने लगे हैं, but in that time that was not the case because वहाँ पे we had a lot more focus on personalized post-test feedback sessions. These post-test feedback sessions are still continuing, but we're also giving extra feedback on the copies themselves. Right? तो इन कॉपीज़ में कुछ बेसिक चीज़ें आपको नोट करनी है। मतलब आई विल ऑब्वियसली बी वॉकिंग यू थ्रू कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू नो that they don't know all the questions. And मतलब these are rankers. I am not revealing their names for the very simple reason कि I will be pointing out some very very glaring mistakes. And इस कारण से I don't want to cause embarrassment to them, but the general idea is that you should know that despite getting a rank, they did not know all questions. Another thing that you should note here is कि they will miss the basics too. वो बार बार वही बेसिक गलतियाँ करेंगे कि भाई डेफिनेशन गलत लिख दी, कुछ और कर दिया, क्वेश्चन पूरा एड्रेस नहीं किया, एंड इट्स फाइन. द थर्ड थिंग दैट आई वांट यू टू नोटिस इज़ कि जो दोनों टेस्ट हैं, ये जो दोनों कॉपीज़ हम देखेंगे, दे आर बोथ फॉर GS3 and they've been checked by two different evaluators. One evaluator is me and the other is Shashank sir. And you will see that marks का थोड़ा वेरिएशन रहता है. I have been a very very strict evaluator wherein मैंने कम कम नंबर दिए हैं थोड़े, whereas Shashank has been a lenient evaluator. And despite the fact the feedback remains constant कि भाई किस चीज़ पे आपको काम करना है, तो आधे एक दो नंबर का फ़र्क पड़ता है क्योंकि over 20 questions. This is the third thing that I want you to keep in mind while looking at these copies. The test के marks don't matter as much as you think they do. Test are more important for understanding कि भाई गलती कहाँ है, उसे सुधारा कैसे जाए, rather than कि भाई मुझे 6 नंबर मिलने चाहिए थे, आपने मुझे 4 दे दिए. Irrelevant है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का. So with these things in mind, we'll move on and check out the copies. So at the same time, plug here if you want to join prelims or mains test series, you can check them out at courses.upscprep.com, and you can also check out the integrated test series which is available over there, जो कि prelims plus mains test series हो जाएगी. At the same time, जो Constitution Day sale थी, which we had announced on the 26th of November, it is ending on the 2nd of December. 15% off you will get on GS Basics and Target CSAT, and after this, these batches will be closed. Right. So let's move on to the test. तो ये टेस्ट था जो हमारा GS3 का टेस्ट हमने पिछली बार मेंस फोकस ग्रुप में दिया था. So let's just look at question number 5. Right, question number 5 है, projected as Aadhaar card for vehicles, the FASTag electronic toll collection will boost highway development. Again, I think ये handwriting जो खराब है यहाँ पे, तो I think somebody was just getting used to the pen tab for the first time. So FASTag is an initiative of the NPCI. It uses an RFID technology. राइट, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि भैया RFID टेक्नोलॉजी आपने बोल तो दी है, बट ये है क्या, इसके बारे में आप एक लाइन यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिख सकते हो, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. नाउ फास्टैग एज आधार पे इन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं, 1 2, एंड दे हैव एड्रेस्ड बूस्ट हाईवे डेवलपमेंट. सो दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. राइट, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि पूछा गया है हाउ विल इट बूस्ट दी हाईवे डेवलपमेंट. तो हाईवे डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ आगे काम नहीं किया गया है. फास्टैग के कुछ प्रॉब्लम्स या फास्टैग में क्या और इश्यूज़ आ रहे हैं, या इसे और बेटर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या इसका नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या, जो सरकार काफ़ी चीज़ें चेंज कर रही है, जैसे आजकल GPS के बारे में भी इस पर बात हो रही है. तो दैट इज़ द कॉमेंट दैट हैज़ बिन गिवन ओवर हियर कि भाई लैकिंग कॉन्टेंट, एंड लाइक एक पेज टाइप में ही ये ख़त्म हो गया. सो इट डज़ फील अ लिटिल बिट
that lacking content, right? At the same time, let's look at the other person's answer over here. So this person has filled the entire 2 pages कि भैया फास्टैग RFID सब चीज़ उन्होंने बताई है, सब चीज़ बताई है, बट अगेन ही इज़ गॉट ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स एज द प्रीवियस पर्सन. वाई? क्योंकि अगर डिटेल में आप यहाँ जाएँ तो उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ फास्टैग भर दिए हैं ढेर सारे, ठीक है, बट was this the demand of the question? No. The question did not ask कि भाई फास्टैग के बेनिफिट्स बताइए. क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई हाउ विल इट बूस्ट हाईवे डेवलपमेंट और विल इट बूस्ट हाईवे डेवलपमेंट, एंड दैट पार्ट हैज़ नॉट बिन आंसर्ड ओवर हियर. एंड विच इज़ द कॉमेंट कि हाउ इज़ इट बूस्टिंग हाईवे डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा बीच बीच में इन्होंने फॉर्डर पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, तो ये फॉर्डर पॉइंट्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे 2 पेज भरने के लिए. एंड वाइल इट मे सीम लाइक जब आप पेपर लिख रहे हैं कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ लिख दिया है, बट एग्जामिनर को ये काफ़ी सामने से दिख जाता है कि भाई यहाँ कंटेंट चाहे कितना ही भर दिया गया हो, द कोर आंसर हैज़ नॉट बिन गिवन, राइट? सो लेट्स लुक एट सम मोर क्वेश्चंस. So now let's look at question number 1. Question number 1 is talking about supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables and food items, and how do they eliminate number of intermediaries. तो यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले तो इनका एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, विच इज़ दैट दिस इंडिविजुअल हैज़ नॉट मैंशनड कि भाई सुपर मार्केट का डेफिनेशन उन्होंने लिखने की कोशिश करी, भाई ये डेफिनेशन में ही गलती कर दी. एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, यही गलती, कोई दिक्कत नहीं. स्टिल इफ़ यू लुक एट, मतलब देव गॉटन ग्रेट मार्क्स, राइट? डजेंट मैटर, गलती कर दी, कोई बात नहीं, चलता है. बट लेट्स गो ऑन. सो ही हैज़ addressed very well the role of supermarkets कि भाई ये फर्स्ट डिमांड था, बट यहाँ पे एंड देर आर नो एग्जाम्पल्स ओवर हियर. ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, फाइन पॉइंट्स, बट टिल द टाइम देर आर नो एग्जाम्पल्स, ये लैक्स अ पंच. एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज पे कैसे है, challenges faced, so all parts of the answer have been addressed. Parts have been addressed. एंड फॉर दिस रीज़न, डिस्पाइट कि भैया उन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन गलत कर दी, डिस्पाइट कि भाई मतलब एग्जाम्पल्स नहीं दी, देव स्टिल गॉटन 3.5. मतलब 3 भी मिल सकते थे यहाँ पे, बट अगेन सिंस शशांक इज अ लीनिएंट एवेल्युएटर ही इज़ गिवन 3.5, राइट? इन द एक्चुअल एग्जाम देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन जो होती है, दैट इज़ वाई टेस्ट में 3.5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं. इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है. आपको मेजर चीज़ जो देखनी है वो ये कि भाई आपको जो फीडबैक मिला है उस पर आप काम कीजिए कि भाई नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, तो लाइक यू लुक एट द प्रॉपर डेफिनेशन. नाउ लेट्स लुक एट द अदर पर्सन्स पेपर इन दिस. तो देव ऑल्सो स्कोर्ड वेल, बट नॉट एज मच एज द प्रीवियस पर्सन हु आई थिंक स्कोर्ड 114. सो बट दिस आंसर इन दिस पर्टिकुलर पर्सनस केस कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, सुपर मार्केट्स, तो इन्होंने सुपर मार्ट्स के एग्जाम्पल दे दिए हैं सीधा सीधा, राइट? तो रोल ऑफ सुपर मार्केट इन्होंने दोनों तरफ से बताया है. लेज पोटैटो प्रोक्योरमेंट, इन्होंने कुछ कुछ बीच में एग्जाम्पल दिए हैं जिसके कारण इनका आंसर पिछले आंसर से थोड़ा बेटर अब लग रहा है, राइट? अब जैसे यहाँ पे contracting soybean producers Patanjali, तो more examples this person has given, and because of that obviously they've also scored 5 marks in this answer. Now elimination of intermediaries को भी इन्होंने address किया है, and finally he has also given a conclusion. तो इस तरीके से आपको देखना है कि सेम क्वेश्चन दो लोगों ने अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट किया. somebody knew a lot more, somebody did not know equally well, but अटेम्प्ट दोनों ने सेक्शंस में किया कि भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया गया, एंड उसके बाद कंक्लूजन भी एक दी गई. एंड जहाँ एग्जाम्पल दिए गए वहाँ पे आपके नंबर बढ़ गए, जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन थोड़ी रेलिवेंट दी, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? सो लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन इन द 15 मार्कर्स.
So we'll take up another question, which will be question number 13. The Union Budget has proposed setting up of National Bad Bank to restore banks' health. क्रिटिकली डिस्कस द आइडिया फॉर अमेलियोरेटिंग बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस. तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें बतानी है इस आंसर में. सबसे पहले तो कि भैया बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस है जो, वो क्या स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम हो रही है. देन व्हाट इज़ दिस बैड बैंक, कि भाई बैड बैंक क्या चीज़ होती है एंड सरकार इससे क्या करना चाह रही है. एंड तीसरी चीज़ जो आपको इस आंसर में एड्रेस करनी है कि भाई क्या ये सही आइडिया है in order to address the banking sector की stress. तो this is something that we'll see in these answers कि have they addressed all three parts and how adequately have they addressed all these three parts. So for example, let's look at this copy over here. What's happening is starting with Kamath committee. So that's a good introduction because it's a very specific introduction and अगर आपको कमेटी का नाम नहीं पता है तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. बट आप सीधा इंट्रोडक्शन में ही बैड बैंक का डेफिनेशन भी दे सकते हो. सो इवन बेटर ओवर हियर इज कि दे फर्दर एक्सप्लेन कि 2 इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप, विच इज द NARCL एंड द IDRCL, एंड इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक आंसर. स्पेसिफिक क्योंकि इन्होंने बहुत ही पर्टिकुलर नंबर्स मेंशन किए हुए हैं. सर्विस बैड लोन, सेल इन द मार्केट, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपोर्ट. इन्होंने टेक्निकल जो बॉडीज़ फॉर्म हुई थी, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हुए थे, उनके बारे में लिखा हुआ है. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने को भी बोला गया था. तो बैंक्स फ्रीड फ्रॉम द टास्क ऑफ एसेट रेजोल्यूशन, तो ये इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी. नाउ दिस पार्ट आइडियली शुड हैव कम अप ओवर हियर. 2 इंस्टीट्यूशंस हैव सेटअप से पहले यहाँ पे आपका आना चाहिए था कि भाई स्ट्रेस किस चीज़ का है बैंकिंग सेक्टर में. बट स्टिल बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट लिखा है, दे विल स्टिल गेट द मार्क्स फॉर इट. इफ दिस पार्ट वॉज मिसिंग, तो जो 3 पार्ट थे आंसर के, उनमें से एक पार्ट मिसिंग होता एंड देन दिस पर्सन वुड हैव लॉस्ट मार्क्स. एंड देन कमिंग टू फाइनली द चैलेंजेस. तो चैलेंजेस में क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था भाई क्रिटिकली एनालाइज, कि एक तो सबसे पहले कि भाई स्ट्रेस क्या है, दूसरा कि भाई बैड बैंक क्या होता है, तीसरा क्या ये सही है कि नहीं. तो सही में पहला पार्ट इन्होंने कर दिया कि भाई सही कैसे है, एंड दूसरा पार्ट इन्होंने कर दिया कि भाई शायद नहीं भी है, कोई दिक्कत हो सकती है, एंड क्या क्या पॉसिबल दिक्कतें आ सकती हैं. एंड फाइनली दे हैव गिवन अ वेरी एप्ट कंक्लूजन about the Indradhanush plan, insolvency and bankruptcy code and EASE 2.0 framework by the government. So this is a very good answer which has received 7 out of 15 marks. Now let's look at the other question, other answer written for this exact question. तो यहाँ पे जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बात कर ही रहे थे कि भाई अगर आपको कमेटी के बारे में नहीं पता, यू कैन स्ट्रेट अवे टेल मी द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ बैड बैंक एंड दैट वर्क्स. सो राइट हियर इन्होंने सीधा जस्ट जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि भाई पहले नीड आनी चाहिए कि भाई स्ट्रेस किस चीज़ का है. सो दिस होल सेक्शन दैट दे मेंशन्ड ओवर हियर कि व्हाट आर द स्ट्रेसेस इन द बैंकिंग सेक्टर, कि भाई माउंटिंग प्रेशर ऑफ NPA हो गया है 9% ऑफ GDP, एंड NARCL सारफेसी एक्ट, दोनों चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है. एंड इन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के बारे में भी बात कर दी. NPA बर्डन पे, टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, बेजल नॉर्म्स का मेंशन कर दिया इन्होंने. सो दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव आंसर विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड आंसर. राइट, तो नेक्स्ट आते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज़ का. तो अभी तक हमने देखा कि भाई इन्होंने बता दिया कि भाई नीड क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, देख लेते हैं इनका. तो इन्होंने रघुराम राजन कमेटी के बारे में मेंशन कर दिया है यहाँ पे. तो आई थिंक बोथ ऑफ देम हैड रेड अबाउट दिस आंसर रिसेंटली, या ये कुछ करंट अफेयर्स में था. सो रघुराम राजन कमेटी हो गया, एंड उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया. बैंक ऑपरेशंस के बारे में इन्होंने बता दिया कि भाई ऑपरेशंस को ही हमें, लेंडिंग प्रैक्टिसेस को ही हमें ठीक करना है. एंड देन फाइनली ही हैज़ ऑल्सो कम अप विद अ good conclusion where he is talking about कि स्विस चैलेंज. तो स्विस चैलेंज एक मेथड होता है फॉर टेंडरिंग. इफ somebody of you knows what a Swiss challenge is, they can let please
ड्रॉप अ कमेंट सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो फाइंड आउट. तो स्विस चैलेंज इन्होंने मेंशन किया है एज अ मीन्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. देन इज ऑल्सो मेंशन द ईज फ्रेमवर्क, देन प्रोजेक्ट सशक्त, prompt corrective action, and 4R formula for bad loan restructuring. And because it's such an informative answer addressing all parts of the question, they have also gotten good marks over here, right? So that's the general idea कि जब भी आप मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं, इट डज नॉट मैटर वेदर यू नो ऑल क्वेश्चंस इक्वली और नॉट. हमने देखा कि भाई दोनों पेपर्स में ऐसा था कि भाई कुछ क्वेश्चंस इन्हें आते थे, कुछ क्वेश्चंस इन्हें नहीं आते थे. जो आते थे दे स्कोर्ड ग्रेट मार्क्स ओवर देयर, मतलब 7 out of 15, 50% मार्क्स स्ट्रेट अवे. जो नहीं आते थे वहाँ जी 3 नंबर मिल रहे हैं, 3.5 नंबर मिल रहे हैं. वी हैव सीन एंड दीज आर रैंकर्स कि भाई बेसिक्स भी मिस किए हैं इन्होंने, भाई डेफिनेशन गलत लिख रहे थे, भाई मतलब सेक्शन ही छोड़ दिया कि भाई इसको एड्रेस ही नहीं किया पार्ट को. एंड फाइनली कि टेस्ट के मार्क्स डोंट मैटर, पर्टिकुलरली बिकॉज यूपीएससी नॉर्मलाइजेशन करता है. यूपीएससी ट्राइज टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक एग्जामिनर ने बहुत लीनियंट मार्किंग कर दी और दूसरे ने बहुत ही ख़राब कर दी, तो मतलब किसी कैंडिडेट का ख़राब हो. बट इन द टेस्ट्स दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. हेंस डोंट बी टू कंसर्नड अबाउट कि भाई मेरे 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, या मेरे 115 नंबर आए, या मेरे 100 नंबर आए. फोकस ऑन कि आपको फीडबैक क्या मिला है एंड डिस्कस दैट विद योर मेंटर कि भाई इसका क्या करें, हाउ डू आई इम्प्रूव, व्हाट कैन आई चेंज. एंड दैट इज़ वेयर यू विल इम्प्रूव द मोस्ट इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब इतने नंबर लाने हैं और उससे हो जाएगा. इट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू मेक इन टेस्ट्स, and that is how you will improve your answer writing skills. So on that note, I'll just drop a second reminder ki you can check out our prelims and mains test series, which are available on courses.upscprep.com. You can also check out the integrated test series, which is sort of prelims plus mains. And thank you all for watching. Best of luck on your UPSC journey.